Hello and welcome to the Mantrana podcast, where ideas meet energy and conversation turn into inspiration. I'm your host Rudra Anand, and today's episode is extra special because today we are not just talking about an author, but to someone who exactly sat here we are sitting right now, a proud Mantranian. Yes, today's guest is award-winning literary personality who has been honored with the prestigious Uttarakhand Sahitya Gaurav Samman for translating Dr. Sanjeev Chopra's book Hum Sab Bharat Ke Rajya Ke Log. And not just that, he had been recognized by the Honorable Chief Minister of Uttarakhand for the contribution to the literacy. So let's welcome with the big smile and immersed energy, Mr. Sachin Chauhan. Thank you so much, Rudra. Sir, first of all, welcome to the Mantrana podcast, and it's truly honor to having you. Thank you so much. It is my pleasure to be back to my alma mater, DAV PG College and Mantrana Society. Exactly, because once a Mantranian is always be a Mantranian. Absolutely. I think it's going to be very special conversation because it's not just about your achievement, but it's also about your journey, your struggle, and the story behind your story. So let's begin with the very first question. You were a student of DAV, and how did you imagine that one day you will sitting here and as an award-winning author? Thank you very much for having me here. And I had never imagined that I'll be sitting here or we'll be doing something like this. And since this is your second podcast of this Mantrana Society, so there were no such things when we were studying in DAV that we will be having some podcast or anything like that. So there were no clues that we will be doing this. But yeah, I had in my mind that I'll be coming back to my alma mater again and again and again. And God has been kind that it is happening this way. So it is absolutely my pleasure to be here and talking to Rudra Anand. Oh, thank you so much, sir. It's a pleasure. Any memorable moment of your college life that still makes you smile today? Oh yeah, there are so many, like countless. Since I and my close friends, we have spent 3-4 years in this campus. So there are like lots of memories, and it is hard to point out one or two. But yeah, doing debates and getting some recognition, I think that's the most fun part if you are a debater. और हमने सुना था कि आपका वाला बैच मैम के साथ घूमने भी गया था. एक्चुअली मैं जस्ट उसके बाद मैंने ज्वाइन किया जब वो लबासना गया था. मैं उसके बाद 2-3 बार लबासना जाने का मुझे मौका मिला है. तो मैंने उसके जस्ट बाद ज्वाइन किया था जब वो बैच मैम के साथ लबासना घूमने गया था. उसके बाद जब मेरा मंत्राना में टाइम पीरियड पूरा हो गया था, तो जो लबासना के डायरेक्टर थे डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी, वो IAS रहे हैं 1985 बैच के और वन ऑफ द मोस्ट एस्टीम्ड सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया. तो उसके बाद उन्होंने शुरू किया है वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल. तो उसमें मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. और जब मैं इस किताब पे काम कर रहा था, वी द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत, इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो राजकमल प्रकाशन से आया है, हम भारत के राज्यों के लोग, जब हम उसकी एडिटिंग कर रहे थे तो दिल्ली हमारा साथ में बहुत बार आना जाना हुआ. सर के साथ मैंने ट्रैवल किया और लबसना भी मैं सर के साथ 1-2 बार गया. सर के वहाँ पे लेक्चर्स भी अटेंड किए. तो मैम वाली ट्रिप में मैं नहीं था, लेकिन लबसना मुझे जाने का उसके बाद मौका मिला. या नाइस. तो आपको ऐसा नहीं लगा कि शिट मुझे पहले आ जाना चाहिए था? मैं मतलब जो जब होता है तभी ठीक है. मैं बहुत ज़्यादा इफ एंड बट्स में मैं जीता नहीं. How did Mantrana Society influence your personality and creativity of all of it? Like in multiple ways. If I say that Mantrana have shaped me the way I am, there will be no exaggeration in this sentence, not at all. मैंने बहुत सारा टाइम मंत्रना में स्पेंड किया है. हमारे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया. इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा. तरुण भैया, तरुण नौटियाल, हमारे सीनियर इंटेलेक्चुअल पर्सन, मतलब दी बेस्ट. मेरे फ़ोन में आज भी उनका नंबर दी तरुण भैया नाम से सेव है. जब भी कुछ बढ़िया होता है तो मैं भैया को फ़ोन करता हूँ. जब भी मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए होती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो हमेशा से भैया से मैं करता हूँ. उज्ज्वल भैया, उज्ज्वल शर्मा, वो अभी IIT हैदराबाद से PhD कर रहे हैं.
वो मंत्रणा के प्रेसिडेंट रहे हैं। उनसे मैंने सीखा कि लीडरशिप स्किल्स क्या होती हैं जब आप डोमिनेंट पोजीशंस में होते हैं, या डोमिनेंट ना कहें, ज़्यादा बेटर टर्म होगा, लीडरशिप पोजीशन में होते हैं जहां आपके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो उनमें से कोई भी बढ़िया काम करता है तो उसको फ़ोन करके या पर्सनली मैसेज करके आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये मैंने उज्जवल भैया से सीखा है। इनफैक्ट मेरी जो सबसे पहली डिबेट थी इंटर कॉलेज, वो मैं यहाँ से सहारनपुर गया था और उसका टॉपिक था वन नेशन वन इलेक्शन। उससे पहले उज्जवल भैया उसी सेम टॉपिक पे उत्तराखंड में कोई डिबेट जीत चुके थे। मैंने उनसे फिर मैंने पूछा भैया क्या कैसे, आई वॉज शॉक्ड कि कोई कितना होमवर्क कर सकता है सिर्फ 3 मिनट की 4 मिनट की डिबेट के लिए। ये आप सबके लिए भी शायद सीखने का होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी मिनिस्ट्री ने उस पर एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश की थी। उन्होंने पूरी उस 100 और समथिंग पेजेस की रिपोर्ट भैया ने निकाली, प्रिंट की, वो पूरा पढ़ा और उसके बाद उन्होंने अपनी डिबेट उन्होंने प्रिपेयर की। तो हम लोग 1 2 3 4 डिबेट जीतने के बाद सोचते हैं कि ओहो अहम ब्रह्मास्मि, तुम क्या हो, ऐसे ही जाऊंगा मैं, जीत कर लेकर आ जाऊंगा। तो होमवर्क कितना आपको करना चाहिए, कितना ज़्यादा आपको होमवर्क करना चाहिए, वो मुझे पहले उससे सीखने को मिला। बाकी प्रखर भैया थे, प्रखर भटनागर, उन्होंने मुझे मंत्रणा में ज्वाइन कराया। शायद आपको वो स्टोरी पता होगी, रूम नंबर 306 वाली। तो हम लोग मंत्रणा में नहीं आ रहे थे, गलती से मंत्रणा में आ गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक बार ये रूम 0306 वाली हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मैं और मेरा बहुत ही खास दोस्त है स्कूल से लेकर, सुधीर वर्मा, हम दोनों जो नई बिल्डिंग है वहाँ पर रूम 306 में हम लोग सुबह 8-9 बजे से 10 बजे तक पढ़ते थे। फिर हम क्लासेस वगैरह जो अपना करते थे, हम जो ब्लैक बोर्ड है उसमें पूरा लिख देते थे। अभी हमारी इससे रिकॉर्ड करने से पहले हमारी बात हो रही थी, हिस्ट्री हम पढ़ते थे, हमने पूरा बोर्ड भर दिया था। तो ऊपर के सारे जितने भी फ्लोर्स थे हम सारे बोर्ड भर दिए थे। रूम नंबर 306 में अभी ये रूम हो गया है, या मंत्रणा का अलग से सेपरेट रूम हो गया है। उस टाइम पर कोई ऐसा सेपरेट रूम नहीं था। 306 में मंत्रणा की मीटिंग्स और सारी डिबेट्स वगैरह जो होती थी, हम वहाँ से गायब हो जाते थे। तो मंत्रणा वाले आते थे, वो देखते थे कि ये कौन लोग हैं, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है। तो हमें मंत्रणा वाले खोज रहे थे, ऐसा हमें बाद में पता चला। फिर एक दिन बारिश हुई तो हम जा नहीं पाए, हम रुक गए। फिर मंत्रणा वाले वहाँ आए तो प्रखर भैया ने कहा कि तुम लोग ये करते हो? मैंने कहा हम ही करते हैं, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, ऐसी क्या बात है, कोई टोक रहा है हमको? उन्होंने कहा नहीं नहीं बहुत बढ़िया बात है। फिर उन्होंने उनिमा मैम से मिलाया, उनिमा मैम डायरेक्टर मंत्रणा डिबेटिंग सोसाइटी, और तब से तो आज तक मंत्रणा के साथ हैं, मैम के साथ हैं, उनके शपथ छाया में। तो ऐसे हम गलती से मंत्रणा में ज्वाइन हुए। मतलब मंत्रणा ने आपको खुद ढूंढा है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, जो कि हमारा खुशनसीबी रही कि हम मंत्रणा से जुड़े। जी। या when did your writing first enter in your life? it passion है, मतलब जब आपके ज़िंदगी में राइटिंग ये ऑल ऑफ अ सडन था, या पैशन था, या एक्सीडेंटली आपने किसी से इंस्पायर होकर यू जस्ट स्टार्टेड राइटिंग? एक्सीडेंटली राइटिंग ऐसे स्टार्ट नहीं हुई। मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि एंकरिंग जो करते हैं, स्कूल टाइम में मैं एकलव्य विद्यालय से पढ़ा हूँ, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कालसी में है। तो हमारे टीचर थे अरविंद हटपाल सर, तो वो साइंस पढ़ाते थे और वो एंकरिंग करते थे, हरिवंश राय बच्चन की पोइट्री कोट करते थे। मैंने कहा ये सही चीज़ है गुरु, अपने को ऐसा करना है। तो स्पीच वगैरह मैं पहले से करता था, फिर हमने धीरे धीरे उसमें काम करना शुरू किया। फिर जब आप मंच पर होते हैं तो आपको विचार अच्छे चाहिए होते हैं, भाषा और वो सब बाद में आ जाती है। फिर आपको पता चलता है कि शायरी से आपका रुतबा बढ़ेगा, बढ़िया एकदम इम्प्रेशन जमेगा, तो आप सस्ती काम चलाओ शायरी से शुरू करते हैं। फिर आपको धीरे धीरे सीरियस लिटरेचर पता चलता है, अच्छी शायरी क्या होती है, अच्छा विचार क्या होता है, अच्छा थॉट क्या होता है, कोटेशंस क्या होते हैं। तो उसको पता चला कि बुक्स पढ़ने से आता है। फिर बुक्स पढ़ी, राहत इंदौरी साहब से शुरू किया, अखबार विश्वास से। फिर सीरियस लिटरेचर, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ट्रांसलेशन, बाकी इंडिया के, दुनिया के, धीरे धीरे पढ़ते 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 फिर वहाँ से लिटरेचर में शुरू हुआ। और मैं स्कूल टाइम से ही मीडिया के लिए प्रेस रिलीज़ वगैरह लिखता था। फिर धीरे धीरे फिर मैंने वैली ऑफ वर्ड्स ज्वाइन किया, उसमें तो लगातार फिर मैं लिखने लगा। फिर वैसे एकदम से कुछ नहीं हुआ कि आज सुबह मैं उठा कि आज मैं कालिदास हो गया हूँ, ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे। पर आपने बस शायरी का जिक्र कर ही दिया है, तो अगर एक शायरी हो जाती। मेरा जो सबसे दिल अजीज़ शेर है जी। वो मुनव्वर राणा साहब का है कि मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा रिटायर्ड लोगों के साथ अपने से उम्र में और समझ में बड़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, उनके छत्र छाया में रहता हूँ। तो वही जो मेरे जीवन का फ़लसफ़ा है कि मुनव्वर राणा साहब एक बहुत बड़े शायर हुए हैं। उन्होंने एक शेर कहा है कि
खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है। तर्ज सुखन है पढ़ने लिखने का जो हुनर है, काम है, ठीक है, कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। कि आप अपने से जो बेहतर लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो किसी भी फील्ड में आपसे बेहतर जानते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उम्र में ही आपसे बड़े हों, स्किल में बेहतर हो सकते हैं, बात करने में बेहतर हो सकते हैं। जैसे मुझे रिकॉर्डिंग एडिटिंग नहीं आती है तो उससे मैं वो सीख सकता हूँ। ऐसे किसी भी इंसान के साथ आप रहें, सीखें, वो मेरा सबसे दिल अजीज शेर है। बाकी भी बहुत सारे हैं। जी, दिस इज वेरी गुड। लाइक सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। नाइस। Who and what inspired you to start writing seriously? आप बचपन से लिखते थे? जब आप दरअसल ये सब शुरू तब हुआ जब स्कूल में आप मॉर्निंग प्रेयर करते हैं तो न्यूज़ बोलते हैं, तो वहाँ से वो काम शुरू हुआ। हमारे आसपास ज़्यादातर लोग क्या करते थे कि न्यूज़पेपर खोला, उसमें निशान लगाया, वहाँ से कट पेस्ट करा। मैंने कहा इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है। मेरे सीनियर थे रोहन भैया, पहले मैंने उनसे सीखा, उन्होंने मुझे बताया, तो उन चीज़ों को अपने वर्ड्स में समझ के फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखना, तो वहाँ से बेसिक चीज़ें शुरू हुई। फिर आपने डिबेट्स लिखना शुरू किया, स्पीच लिखना शुरू किया, तो डायरी राइटिंग स्टार्ट की। डायरी राइटिंग बहुत Diary इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको समझकर फिर आप अपने वर्ड्स में अच्छा, बुरा, ख़राब, घटिया जैसा भी है आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने लगभग पूरे स्कूल टाइम में रेगुलर डायरी लिखी है 6-7 साल तक। तो Wow. उसमें फिर वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, फिर उनको समझने का और फिर वर्ड्स में ट्रांसलेट करने का, वो जो लगातार प्रैक्टिस है, धीरे 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 वहाँ से वो शुरू हुआ है। कोई एक ऐसी किताब जो आप अपने जूनियर्स को या अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करो कि अ, देखिए, अगर कोई इंसान लिटरेचर में है तो एक किताब पूछना उससे नाइंसाफ़ी है। मैं बहुत सारी किताबें आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन जो मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है युवाल नोआ हरारी। आपने शायद नाम सुना होगा। वो यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और दुनिया के तमाम सब्जेक्ट्स पर उनकी बहुत ही कमाल की पकड़ है। उनकी एक किताब है जो मैंने ओनिमा मैम से, जो मंत्रणा लाइब्रेरी है वहाँ से मैंने ले ली, परमानेंट अपने लिए ले ली, जिसका नाम सेपियंस है। उससे आपको समझ में आता है कि दुनिया अब तक कैसे बनी है। फिर उनकी दूसरी किताब है होमो ड्यूज और तीसरी है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। बहुत ही कमाल की किताब है। और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर शायद उनकी 2024 में उनकी नई किताब आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एड्रेस करते हुए, नेक्सस नाम से। तो युवाल नोआ हरारी का है। बाकी भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, वही वो इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा थे, लोग सिर्फ उनको क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं। उनका एक ऐसे है वाई आई एम एन एथिस्ट, उसका मुझ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। मैंने 2017-18 में उसको पढ़ा था, तो अब तक उसकी काट मुझे कुछ और मिली नहीं है। इनफैक्ट जो उन्होंने लिखा है उसके आगे की बात 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी में एक रिलीजन चैप्टर है युवाल नोआ हरारी का लिखा हुआ, उन्होंने उसे वहाँ से और आगे बढ़ाया है। उसके अलावा अगर आप हिंदी में अभी कंटेम्प्रेरी में आप देखें तो नीलोत्पल मृणाल करके एक लेखक हैं, उनकी औघड़ किताब है, बहुत सुंदर है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अभी मैंने रिसेंटली फिर मिलोगी करके एक उपन्यास है जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है, मधु चतुर्वेदी का शायद है। और मेरे कौन सी फेवरेट हैं, भगवद गीता मैं पढ़ता हूँ। भगवद गीता फिलोसॉफी की अच्छी किताब है। उसी से जो मैच्योरिटी और समझ है, डिसीजन लेने की क्षमता है, वो उससे मदद मिलती है, भगवद गीता। तो सर आप हमें अपनी बुक के बारे में बताइए और कैसे, जैसे अभी आपने हमें बताया कि डॉक्टर संजीव चोपड़ा से आप कैसे मिले, हाँ जी, हाँ जी। और तो मतलब स्टार्टिंग में लाइक आपका कैसे उनसे कनेक्शन हुआ कि सर मुझे, और मतलब आपने वही क्यों, उन्हीं की बुक ही क्यों चूज़ करी कि उन्हीं की बुक का ही मुझे हिंदी में वो नहीं, देखिए, मैंने ये चूज़ नहीं करा कि मैं सर की बुक करूँ। सर हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी कि वो दुनिया में किसी से भी चाहते तो करवा सकते थे। सर ने मुझे कहा कि बेटा करोगे? मैंने कहा मालिक क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। तो सर ने, दरअसल सर का एक सेशन था मसूरी में, लैंडौर में। मैं और मेरा दोस्त शैलेंद्र कांत, वो भी मंत्रणा का मेंबर था, वो आज तक मेरे जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं सब में साथ रहता है। इस बुक में भी उसने मेरी हेल्प की है। तो मैं बेसिकली लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने से बचता हूँ, और बिज़नेस और पैसे वैसों की बात में या मना करने में मुझे बहुत हिचक होती है। तो मेरा वो सारा काम वो करता है, ठीक। तो मैं और शैलेंद्र सर के एक सेशन को अटेंड करने गए जो इस बुक पर था, लैंडौर में, मसूरी में।
फिर उस सेशन के बाद सर ने कहा कि बेटा तुम ट्रांसलेशन करते हो? मैंने कहा बिल्कुल करता ही हूँ सर, वाव के लिए भी करता हूँ, वैली ऑफ वर्ड्स जो लिटरेचर फेस्टिवल है हमारा। तो सर ने कहा बुक करोगे? मैंने कहा बिल्कुल। तो सर ने कहा एक सैम्पल भेजना। तो फिर राजकमल जो पब्लिशर हैं उनको भेजेंगे। फिर मैंने किया, तो राजकमल को भेजा, राजकमल से अप्रूवल आया कि ठीक है। फिर मैंने पूरा बैठ के किया, और मेरे एक बहुत मित्र ही हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, तजुर्बे में बहुत बड़े हैं, लेकिन उन्होंने दर्जा दिया है कि हम आपस में मित्र कह सकते हैं। सोमेश्वर पांडे उनका नाम है, वो वरिष्ठ हिंदी अधिकारी है आईआईपी में। उन्होंने, वो ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि आप जब एक आर्टिकल ट्रांसलेट करते हैं 1000, 1200, 1500 वर्ड्स का, और जब आप 1,00,000 वर्ड्स की किताब ट्रांसलेट करते हैं, तो वो T20 और टेस्ट खेलने जैसा है, उसमें उतना डिफरेंस है। उसमें उन्होंने मेरी मदद करी। तो संजीव सर ने कहा, उन्होंने मौका दिया मुझे, तो मैं चूज़ करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं ये काम करूं, और फॉर्चुनेटली ठीक ठीक काम हो गया, और उस काम की वजह से आज आपने मौका दिया है यहाँ आने का। ऑलराइट, तो सर मतलब बेसिकली जैसे हम वी आर अप टू समझे से यू आर अप टू राइटिंग, राइट? तो मतलब अब हमेशा ही यू आर नॉट ऑन दैट मूड ना, कि अपना एक जोन चाहिए होता है राइटर्स को, राइट? तो मतलब आई एम जस्ट आस्किंग कि आपका कभी ऐसा हुआ है कि आज छोड़ देते हैं, कल काम करेंगे, टुडे आई हाँ नीड हाँ, अ हर रेस्ट? रोज़, रोज? डेली। हाँ, मतलब बहुत होता है। तो जब तक आप डेडलाइन या तो आर्टिफिशियल ना बनाएं, या फिर कोई ऐसी डेडलाइन ना हो कि आपको अब सबमिट करना ही है, तो अमूमन अक्सर रहता ही है, तो जिसको राइटर्स ब्लॉक कहते हैं, कि आप लिखना नहीं चाहते, या आप लिख नहीं पा रहे हैं। कभी कभी होता है, लेकिन अगर आप बैठते हैं तो कुछ ना कुछ टाइम में निकल जाता है। एग्जैक्ट, राइटर्स है तो दे ऑलवेज अप टू ना, चलो अगर अपने टॉपिक में भी नहीं है बट दे आर अप टू लाइक कि यूनिवर्स दिस एंड दिस इज हैपनिंग। आई डोंट नो, क्योंकि मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ नहीं कि मैं कुछ लोगों को ज्ञान दे सकूँ। इनफैक्ट मैं इस लाइन में बहुत कम उम्र का ही हूँ, तो मैं बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन उस पर दे नहीं सकता। लेकिन मैं बहुत टाल मटोल करता हूँ, जो मुझे सुधारना है, मेरी खराबी है। थोड़ी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस मुझे और बरतनी है, ताकि और ज़्यादा काम हो सके और अच्छा काम हो सके। कोशिश कर रहा हूँ मैं, होता तो है ये। इस प्रोजेक्ट का आपका मतलब कितना डेडलाइंस, कितने मंथ्स का था और आपने लाइक डेडलाइन से पहले दे दिया? अब ये अप्रैल ऑफ 2023 जिस दिन ये सेशन था, उस दिन मुझे मिला था। तो 1 डेढ़ हफ्ते में मैंने प्रोलॉग करके ट्रांसलेट करके सर को दे दिया था। फिर 30th ऑफ अप्रैल को कंफर्मेशन आया कि अब आपको करना है। तो इसकी पहली जो पब्लिश होने की डेट थी, वो 15th ऑफ अगस्त थी, सेम ईयर में। तो मैंने जुलाई लास्ट तक मोस्टली काम कर लिया था। नोट्स वगैरह रह गए थे, लास्ट कुछ चैप्टर्स रह गए थे, और एडिटिंग रह गई थी। लेकिन वो पब्लिशिंग की जो डेडलाइन है, वो पीछे पीछे होते होते पब्लिश होने में टाइम लगता है। मल्टीपल टाइम्स आपको एडिटिंग करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर 1 साल के आसपास पूरा टाइम लगा। फिर उसके 2-3 महीने बाद और प्रूफ रीडिंग वगैरह पब्लिशर के एंड से हुआ, तब जाकर ये जुलाई में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हुई। और इसका जो बुक लॉन्च था, वो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हितेश मकवाना जी, जो IAS है 1996 बैच के, ही हैज़ बीन वेरी काइंड। वो भी सर के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी के, वो भी स्टूडेंट हैं, मेरे भी सर गुरु हैं। तो उन्होंने ग्राफिक एरा में बुक लॉन्च हुआ था सितंबर 2024 में। नाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली ये सुन के। अरे थैंक यू सो मच। I can imagine like this had happened, like wow. आपको उत्तराखंड सरकार से भी पुरस्कार मिला था, तो आपका उसका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? उत्तराखंड गवर्नमेंट अभी लिटरेचर को लेके काफ़ी अच्छा काम कर रही है। उत्तराखंड भाषा संस्थान एक पूरा डिपार्टमेंट है जो उन्होंने बनाया है, और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान पिछले कुछ सालों से दिया जा रहा है, जो साहित्य में उत्तराखंड में अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें अलग अलग अवार्ड्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। इस बार डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जी के नाम पर ये पुरस्कार अनुवाद का शुरू किया गया, जो कि मुझे मिला है, मेरा सौभाग्य है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है लिखने वालों को। इनफैक्ट साहित्य अकेडमी का जो अवार्ड होता है, वो 1,00,000 रुपए का होता है, और जो उत्तराखंड का साहित्य भूषण सम्मान है, वो शायद 4.5 लाख रुपए का है। तो साहित्य को, लिटरेचर को गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड
अच्छा प्रमोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और मुझे इतनी कम उम्र में मौका मिला, आई एम रियली वेरी 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 थैंकफुल एंड व्हाट कैन आई से, ग्रेटफुल टू अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे इतनी जल्दी मिल गई हैं। थैंक्स टू मेरे गुरु डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी, और भी कितने सारे लोग हैं, डॉक्टर सुधा रानी पांडे हैं जिन्होंने मुझे बहुत लगातार उसमें हेल्प की, और अनिल रतूड़ी सर हैं, वो फॉर्मर डीजीपी रहे हैं उत्तराखंड के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और राधा रतूड़ी मैम हैं, उनके घर पे ही, राधा रतूड़ी मैम चीफ सेक्रेटरी रही है उत्तराखंड की, उनके घर पे प्रोग्राम होता है फुलवारी में चर्चा नाम से। वहाँ पर जो बेस्ट लॉरियट्स हैं वो वहाँ पर होते हैं, डिस्कशन होते हैं। मैं उसका भी सबसे यंगेस्ट मेंबर हूँ। उन सब की संगत में रहते हैं, सीखते हैं। कितने सारे लोगों का गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, और उत्तराखंड गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। जब आपको पता चला कि आपको प्राइज़ के लिए बुला रहे हैं, तो मतलब मतलब आपको कैसा फ़ील हो रहा था उस समय? मतलब एक्चुअली मैं सबसे यंगेस्ट हूँ इस अवार्ड की हिस्ट्री में, तो मुझे जो डिप्यूटी डायरेक्टर हैं उत्तराखंड भाषा संस्थान की, उनकी तरफ से मुझे व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ, मेल पर प्राप्त हुआ, और उन्होंने कॉल किया कि सचिन आपको इस बार का ये अवार्ड दिया जा रहा है। ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश था। मेरी मम्मी आ रखी थी साथ में, तो मैंने मम्मी को बताया। फिर मैंने संजीव सर को कॉल किया, संजीव सर और रश्मि मैम जो वाव की चेयरपर्सन भी हैं, इन दोनों को मैंने बताया। उन्होंने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया कि बुक को रिकग्निशन मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है काम को। और फिर मैंने अपनी बहन जिसके कंधों पे मैं सारा काम करता हूँ, अमृता चौहान नाम है उनका, तो मैंने अपनी बहन को बताया। फिर धीरे धीरे फिर मीडिया में आया, फिर ये बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। या तो फिर आई जस्ट वांट कि एक आपने अपनी खुद की जो शायरी लिखी है, आप एक वो सुना दीजिए। वैसे वो बहुत मैच्योर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक आध आपको सुना देता हूँ। जब मैं मंत्रणा में था तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का, या लव्स एक करके फोरम है, उनका एक कंपटीशन था नेशनल, तो उसमें उसके लिए मैंने लिखा था। कुछ लाइंस हैं वो मैंने लिखी थी, तो फॉर्चुनेटली उसमें मैं फर्स्ट प्राइज़ जीता था, वाओ! तो इसलिए मैं वो आपको सुना सकता हूँ कि मैं उसके दर से आज मुंह मोड़ आया हूँ, मैं उसके दर से आज मुंह मोड़ आया हूँ, तोहफे भी लौटा दिए, दिल भी छोड़ आया हूँ। मैं उसके दर से आज मुंह मोड़ आया हूँ, तोहफे भी लौटा दिए, दिल भी छोड़ आया हूँ। लौटते सफ़र में मुझे ये ख्याल आया, दौरे इश्क में क्या खोया क्या पाया। लौटते सफ़र में मुझे ये ख्याल आया, दौरे इश्क में क्या खोया क्या पाया। दर्जनों हंसी लम्हे बिताए, सैकड़ों यादें साथ लाया, तजुर्बाए इश्क ने मुझे खूब इंसान बनाया। और आखिरी वो है कि तजुर्बाए इश्क ने मुझे खूब इंसान बनाया, और बहुत समझा बहुत सोचा फिर इस नतीजे पे आया। बहुत समझा बहुत सोचा फिर इस नतीजे पे आया, ढूंढने निकला था हम सफ़र और सफ़र ही छोड़ आया। वाओ! थैंक यू, आई जस्ट लव इट। थैंक यू सो मच। मतलब ये सच में आपको, मतलब आपका फर्स्ट इवेंट कौन-सा था मंत्रणा सोसाइटी में? इससे पहले कि मैं आपके इस आंसर का जवाब दूं, मैंने जिस शख्स का नाम इससे पहले लिया था, सुधीर वर्मा, तो क्योंकि उस समय पर मुझे ऐसे दिल टूटने के या दिल लगने के ऐसे कोई तजुर्बात मेरे पास थे नहीं, तो भावनाएं मैंने उससे उधार ली, उसने मेरी मदद की, और फिर मैंने उसको अपने क्राफ्ट से लिख के जोड़ा, तब मैं ये जीता। और हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है कि जहाँ कहीं भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं ज़रूर ये मेंशन करना पड़ता है कि ये भावनाएं उसकी हैं, लिखा मैंने है। और वो भी कहीं पर सुनाता है तो वो भी यही सुनाता है कि मेरी ही है और लिखा किसी और ने है। तो बहुत हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है। बहरहाल आपका क्वेश्चन प्लीज़। कि आपका फर्स्ट इवेंट मंत्रणा का। हाँ, फर्स्ट इवेंट मंत्रणा सोसाइटी में कोई इंट्रा कॉलेज डिबेट, एक मीटिंग थी 306 में, रूम नंबर 306 में एक मीटिंग थी, जिसमें तरुण भैया थे, उज्जवल भैया थे, प्रखर भैया थे, प्रखर भटनागर, निधि रावत करके एक बहुत अच्छी डिबेटर थी हमारे टाइम पे, वो थी, देवांश एक लड़का है, देवांश छोटे भाई की तरह है मेरा, वो था,
वो सब लोग थे, मैम थी और जुवाली पांडे मैम थी जो उसमें रहते हैं। वो मीटिंग थी, वो पहली मीटिंग थी, और जो पहला इवेंट इंटर कॉलेज था वो सहारनपुर में जो नेशनल डिबेट थी, वन नेशन वन इलेक्शन वाली, वो मेरा कॉलेज के बाहर पहला इवेंट। से जब आप यू वर ट्रांसलेटिंग दैट बुक तो आपने उसमें क्या, आपको क्या सीखने को मिला, और जैसे अगर वो मैं या कोई भी पढ़ता है तो उसको क्या सीखने को मिलेगा? हाँ जी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं। सबसे पहले ये जो बुक है हम भारत के राज्यों के लोग, इसकी जो थीम है कि 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पर 562 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, और 9 जो प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, उनसे आज के जो 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये कैसे इंडिया का मैप इवॉल्व हुआ है इतने टाइम में, उसकी एक स्टडी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री की ये बुक है। तो उसमें आप जम्मू कश्मीर से लेके, लद्दाख से लेके, तमिलनाडु तक, केरल तक, और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम से लेके गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, आप पूरे देश का पिछले 70-80 सालों की हिस्ट्री और उसके क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स रहे हैं, क्या सोशियो कल्चरल फैक्टर्स रहे हैं, जिन्होंने इतना डोमिनेट किया है कि वो पूरा अलग एक स्टेट बना है। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे बने हैं, तो वो हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है। 1919 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी जो यूनिट्स थी वो लैंग्वेज के बेसिस पर बनाई थी कि कन्नड़ा की होगी एक, मराठा की, मराठी भाषी की एक होगी, तो वैसे करके उन्होंने अपनी यूनिट्स बनाई थी। तो फिर वो बाद में लेजिटिमेट क्वेश्चन बना। सबसे पहला जो लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड उठी वो आंध्र प्रदेश के लिए सबसे पहले डिमांड आई। पोटी श्रीरामुलु करके एक वहाँ के एक्टिविस्ट थे जिनका जो आमरण अनशन पर बैठे और उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद फिर वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा और उसने बल पकड़ा। तो फिर जो तब के प्राइम मिनिस्टर थे और तब की गवर्नमेंट थी, जवाहरलाल नेहरू तब प्राइम मिनिस्टर थे और कांग्रेस तब की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने फिर एक्नॉलेज किया कि चलो हम एक स्टेट बनाएंगे, तेलुगु के नाम पर हम आंध्र प्रदेश बनाएंगे। और फिर उसके बाद फिर बाकी जो लैंग्वेज वाले लोग थे उनसे भी डिमांड आई कि मराठी भाषा के लिए क्यों नहीं अलग होना चाहिए, गुजरात वालों के लिए क्यों नहीं अलग होना चाहिए, या तमिल वालों के लिए अलग क्यों नहीं होना चाहिए, मलयालम वालों के लिए क्यों नहीं अलग होना चाहिए। तो अलग अलग जगह से इतनी सारी आवाज़ें उठने लगी कि उन्होंने कहा कि ऐसे तो एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने बनाया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, 1954-55 में बनाया और 1956 में उनकी रिपोर्ट पब्लिक हुई। वो 267 पेजेस की रिपोर्ट, आज तक की जितनी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पढ़ी गई और सबसे ज़्यादा कोट की गई रिपोर्ट्स में से एक है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट। फिर उन्होंने बताया कि कौन कौन सी स्टेट्स बना देने चाहिए, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज बना देने चाहिए। फिर ऐसे धीरे धीरे करके इंडिया का मैप इवॉल्व हुआ। तो पूरे इंडिया का ओवरऑल एक ओवरव्यू आपको समझ में आ जाता है अगर आप ये किताब पढ़ते हैं। मुझे भी वो समझ में आया। आपने ये बुक मतलब पहले कभी पढ़ी थी कि इसी हाँ। प्रोजेक्ट के थ्रू? दरअसल पहली कोई ऐसी बुक जो किसी ऑथर ने सामने से मुझे ऑटोग्राफ करके दी वो यही थी, वी द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत, जो इसका इंग्लिश वर्जन था जो 2022 में पब्लिश हुआ था। तो वो जिस इवेंट में इस बुक का बुक लॉन्च था, मैं उस इवेंट में प्रेजेंट था और तब मैं सर के साथ काम कर ही रहा था। तो पहली बुक थी जिसमें मुझे ऑटोग्राफ करके मिला, तो मैं पहले भी पढ़ चुका था। फिर बाद में फॉर्चुनेटली वो किताब मुझे ट्रांसलेट करने के लिए मिली और फॉर्चुनेटली पहला मेरा नाम जो किसी किताब पर प्रिंट होकर आया वो उसी किताब के और उसी ऑथर के साथ आया। नाइस। फेरी टेल जैसा लगता है। एग्जैक्टली। तो आप सर से मतलब आप मिले कैसे, लाइक एग्जैक्ट कैसे? उसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं बहुत हेजिटेट करता हूँ किसी को कॉल करने में सामने से। मैं उनिमा मैम के बहुत क्लोज़ हूँ। मैंने बहुत टाइम मैम के साथ मैम के अंडर में काम किया है, स्पेंड किया है, लेकिन मैं मैम को कभी कॉल नहीं करता। 5 जून 2022 को मैं एक कहीं से आ रहा था, मेरी बहन की स्कूटी मेरे पास थी, मैंने उसमें 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया था। मैंने कहा इसमें बचा हुआ है ये तो इसको नहीं दूंगा। वाव कैफ़े जो जहाँ पे वाव के इवेंट्स होते हैं वहाँ एक इवेंट था, तो मैंने कहा वहीं चला जाता हूँ। मंत्रणा के कुछ लोग जा रहे थे
मैं उसमें नहीं जा रहा था, तो मैंने मैम को कॉल किया शाम को 5 बजे के आसपास कि मैम मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, चला जाऊँ? मैम ने कहा हाँ बेटा जाओ। और संजीव सर और तानिया मैम, तानिया सली बख्शी जो प्रोग्राम डायरेक्टर है भाव की, तो मैम ने कहा कि वो लोग कोई हिंदी और जिसका हिंदी और लिटरेचर में इंटरेस्ट हो, ऐसा कोई लड़का उनको चाहिए भी था, तो वो बात भी करें ना। मैंने कहा अरे वाह, अब तो सेंस भी बनता है। फिर मैं गया वहाँ, वो सेशन मैंने अटेंड किया, फिर सर और से बात की, फिर उन्होंने सैंपल मांगा, एक आर्टिकल का लिख के मैंने वो दिया, तो फिर वहाँ एक्सेप्ट हो गया। तब से अब तक साथ है। Alright, भैया, now come up with my favorite part, rapid fire. No thinking too much, just honest answer. आई ट्राई। Pen or keyboard? पेन। Morning writing or midnight writing? मिडनाइट। क्यों? आई डोंट नो, मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह उठ जाऊँ, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा बदतमीज़ किस्म का इंसान हूँ, नहीं उठ पाता हूँ, रोज़ डांट खाता हूँ अपनी बहन से, तो सुबह हो नहीं पाता। वैसे सुबह प्रोडक्टिव होता है, लेकिन क्योंकि मैं हर दूसरे दिन फेल हो जाता हूँ, तो इसलिए Friction or reality? इफ़ यू आर सेइंग फिक्शन और नॉन फिक्शन, तो आई लाइक नॉन फिक्शन एंड आई लाइक बोथ, बट आई प्रेफर नॉन फिक्शन, क्योंकि संजीव सर को पसंद था। ये क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा था जब हम दिल्ली से वापस आ रहे थे इस बुक के काम से, तो सर ने कहा नॉन फिक्शन, तो फिर उसके बाद मैं भी नॉन फिक्शन अब से मैं भी नॉन फिक्शन। गुड। One word to describe Mantrana society. वन वर्ड, अरे यार दिस इज सो डिफिकल्ट। झकास। Wow. Your biggest writing inspiration, person or your idea, जो भी हो. पर्सन, जावेद अख्तर साहब का मुझ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उनके थॉट प्रोसेस का, और जिस तरीके से वो लिखते हैं, बात करते हैं, किसी भी मैटर को एड्रेस करते हैं, उनका बहुत 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 ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मुझ पे। आई विश मैं कभी उनका 2% भी कुछ उनके जैसे लिख सकूँ, कुछ ऑब्जर्व कर सकूँ, कुछ। आई लाइक जावेद साहब। अपने जावेद अख्तर साहब की बात कर ही दी है, तो हाँ। एक उनकी पोइट्री अगर हो जाए तो. उनकी मतलब उनकी जो नज़्म वगैरह होती है वो बहुत बड़ी होती हैं, जी. तो उसको ऐसे सुनाना, मैं फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा मुझे। हाँ, जावेद अख्तर साहब की बहुत सारा उनका लिखा हुआ सारा ही मेरा फेवरेट है। उसमें से एक गज़ल है जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि वो ज़माना गुज़र गया कब का, वो ज़माना गुज़र गया कब का, था जो दीवाना मर गया कब का, ढूंढता था जो एक नई दुनिया, ढूंढता था जो एक नई दुनिया, लूट के अपने घर गया कब का, वो जो लाया था हमको दरिया तक, वो जो लाया था हमको दरिया तक, पार अकेले उतर गया कब का, उसका जो हाल है वही जाने, उसका जो हाल है वही जाने, अपना तो ज़ख्म भर गया कब का, ख्वाब दर ख्वाब था जो शिराज़ा, ख्वाब दर ख्वाब था जो शिराज़ा, अब कहाँ है बिखर गया कब का। यह क्या बात है. थैंक यू। वाओ. ऐसे जावेद साहब पे फिर कभी 4 घंटे का पॉडकास्ट करेंगे। जरूर जरूर. ठीक है, तो हम बात करते हैं कॉफी और अ चाय पर्सन व्हाइल राइटिंग. चाय। अदरक वाली. हाँ इलायची भी होनी चाहिए. हाँ, सोमेश्वर पांडे सर जिनका मैंने नाम लिया था, जो हमारे मित्र भी हैं, हम हर तीसरे चौथे दिन चाय पर मिलते हैं। वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अपनी जगह से आते हैं, मैं 4-5 किलोमीटर अपनी जगह से जाता हूँ, और हम जेठुड़ी जी करके एक जगह है, टी स्टॉल है, वहाँ पर हम बैठते हैं। इनफैक्ट इस किताब का भी हमने काफ़ी काम वहाँ पर किया है। चाय पर चर्चा होती है हाँ, आपकी. चाय पर चर्चा लगातार एकदम। इफ यू आर नॉट अ राइटर देन व्हाट? रीडर, लर्नर, someone who is trying multiple things one after another. स्टिल मतलब स्कूल में आपने मतलब ये डिसाइड कर लिया था ड्यूरिंग योर स्कूल डेज की नहीं अब तो मैं राइटर ही बनूंगा? नहीं, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था। आई एम द वन हु लव्स टू enjoy the vibe and go with the flow. तो जब जैसा डिसीज़न, जिस लेवल पर जो समझ है, उसके हिसाब से जो बेस्ट डिसीज़न होगा वो तब ले लेंगे। हो सकता है अभी कुछ टाइम बाद मैं कुछ और करने लग जाऊँ, इसके साथ में कुछ और करने लग जाऊँ, हो सकता है एकदम ही कुछ। अभी मैं सोच रहा हूँ ग्राफिटी में सीखूँ, स्केटिंग मुझे सीखनी है, लास्ट ईयर मैंने ड्राइविंग सीखी है, ऐसा कुछ अलग अलग ट्राई करते करते।
मतलब स्टिल मतलब ऐसा आपको कुछ था नहीं, लाइक एक होता है ना स्टूडेंट का या पेरेंट्स प्रेशर होता है कि नहीं कुछ फॉर्चुनेटली वो मेरे पे पेरेंट्स प्रेशर वाओ प्रेशर था नहीं, तो वो हमें आज़ादी है कि हम जो करना चाहें बस तमीज़ से कर लें, ठीक से कर लें, हाँ जी. और अब तो वो भी खुश हैं आई गेस। One message for your younger self. वन मैसेज फॉर माई, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मौज कर भाई। हाँ, लाइक लिव इन द मोमेंट, जब जहाँ है वहाँ बस। Nice, very nice thought, sir. थैंक Here or a friend from Mantrana Society हाँ. who you admire the most. हाँ. Anything you learn from our founder, director of Mantrana, Dr. Unima ma'am. Okay, so there are two parts of this question. So very first, the तरुण भैया, obviously वो हमें पढ़ाते भी थे, तो एक जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट आया कोविड के टाइम पे, वो हमको ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने ग्रे एरिया के बारे में हमें बताया। हमारी बेसिकली ह्यूमन की टेंडेंसी होती है हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखने की, सही या गलत, ठीक या खराब, अच्छा या बुरा, ऐसे देखने की। उन्होंने बताया, जिसमें हम अभी तक बात भी कर रहे थे, कि 99.9% चीज़ें ग्रे एरिया में होती हैं, जिसका मतलब है कि वो अपने आप में ना ठीक है, ना खराब है, ना सही है, ना गलत है। वो कौन सी देश काल परिस्थिति में है, देश कौन सी लोकेशन में हो रही है, काल कौन से टाइम में हो रही है, परिस्थिति किन कंडीशंस में, किन सिचुएशंस में, किन सर्कमस्टांसेस में हो रही है, उससे डिसाइड होगा कि वो ठीक है या गलत है। तो ये ग्रे एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, कि उसके बाद से लाइफ की इंटरप्रिटेशन, समझ बहुत मदद हुई है। भैया से क्या क्या बहुत कुछ, पढ़ना कैसे, भैया बहुत पढ़ते थे, तो भैया से किताबें पढ़ना सीखा, बहुत कुछ। आई लव यू तरुण भैया। I love you, Tarun Bhaiya, too. Anything that you learned from our founder, director of Mantrana हाँ, Society? पेशेंस, कि आप कितने सारे अच्छे ख़राब मोमेंट्स एक दिन में आपको देखने हैं, झेलने हैं, और बावजूद उसके पेशेंटली आपको सबको सुनना है, जितना हो सके उसको सॉल्व करना है, और पेशेंस पेशेंस पेशेंस, वो मैंने Ma'am सीखा से है कि सीखा है. शांति से आप कैसे डील करते हैं True. चीज़ों से। What message would you like to give to the current Mantrana member? बहुत 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 सारे इवेंट्स करो, बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, जितना डिबेट्स हो सकती हैं डिबेट्स करो, पोइट्री कंपटीशन हो सकते हैं, ABCD जितने अलग अलग तरह की कल्चरल परफॉर्मेंसेस हो सकती है, सब ट्राई करो। 10 तरह के कॉलेजेस में जाओ, 10 जगह हारो, 2 जगह जीतो, ट्राई करो, एक्सपीरियंस लो, मौज लो, और अपनी जो ये टाइम है मज़ा उठाओ, एंजॉय करो। आपका फर्स्ट डिबेट जब था, हम्म। तो मतलब वो कैसा था मंत्रना सोसाइटी में? क्योंकि मंत्रना सोसाइटी में मतलब सब एवरीवन इज लाइक फाइनेस्ट, एकदम बहुत ज्यादा, लाइक राइट, या तो वो Everyone is होते like, हैं या तो वो होने हाँ, आए होते हैं फाइनेस्ट. हाँ, हाँ। सो आई जस्ट वांट टू आस्क, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जब अपने फर्स्ट टाइम डिबेटिंग आई वॉज करी? अमेज्ड कि कोई कितना बढ़िया बोल सकता है। उज्जवल भैया, उज्जवल शर्मा जो प्रेसिडेंट थे, क्या सुंदर वो बोलते थे, कितनी रिसर्च के साथ आते थे, कि जब आप रिबटल राउंड में हैं तो आपने रट के तो आ गए, आपने कुछ बोल दिया, लेकिन रिबटल राउंड को आप कितने अच्छे से आप हैंडल कर सकते हैं, उसमें आपकी रिसर्च काम आती है। वो मैंने देखा। फिर मैंने देखा कि जो फॉर एंड अगेंस्ट में लोग हैं, वो ऑफ द स्टेज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे का ठीक करा रहे हैं, ये बता रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक ही टीम है, चाहे आप कभी कम्पीट भी कर रहे हैं। वो देखा, मैंने कहा ओह कूल। फिर वो सब देखा, सीखा, धीरे धीरे उनसे बात की, उन्होंने बताया ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। Okay, Bhaiya, this conversation has been truly inspired from your journey as a student to become an award-winning author. It's a story of a motivation of all of us of dreaming and work hard. Before we end it up, I want to ask you one last question, that how do you want to people to remember you as Sachin Chauhan? Actually, I have a very good answer for that. I learned that from Sadhguru. किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, आई डोंट वांट पीपल टू रिमेंबर मी एट ऑल, आई वांट देम टू बी एज हैप्पी, कि उनको कभी किसी चीज़ की याद आए ना, कि पास में कोई था, अच्छा था। तो वैसे भी हम तो खाकसार हैं, हम दुनिया में इतना कोई बड़ा काम किया नहीं, तो सब लोग अपनी लाइफ इतनी बढ़िया जिए कि वो कुछ मिस ना करें, मेरे को याद ना करें, किसी को याद ना करें, अपनी लाइफ बढ़िया से जिए। दैट्स इट। Wow, बहुत इंटेलेक्चुअल था ये। थैंक यू सो मच। दिस इज जस्ट borrowed फ्रॉम सदगुरु। सदगुरु। हाँ। तो गाइस, जाने से पहले भैया से एक और शायरी
मैं यहाँ पे थोड़ी थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मंत्रणा का, DAV का और नीमा मैम का और pleasure. रुद्रा आनंद और पूरी जो काउंसिल है, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आखिर में एक शेर, मीर तकी मीर मिर्ज़ा गालिब से पहले एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनके 2 शेर हैं कि दिल मुझे उस गली में ले जाकर, दिल मुझे उस गली में ले जाकर और भी खाक में मिला लाया, दिल मुझे उस गली में ले जाकर और भी खाक में मिला लाया, अब तो चलते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। Thank you so wow. much. Thank you so much, Bhaiya, for joining us today. It's an absolute pleasure for us to having you today here. And to everyone who is watching this podcast, tab tak ke liye, keep shining and keep learning. Bye.